Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and safe at your home and taking good care of yourself. Today is 24th of May 2021. Day is Monday and you are having your science lesson with me. The chapter that we are reading these days is unit number 3, the plant world, and our today's science topic is about the structure of seed. Before we know the concept about the structure of seed, let us just revise what we have studied in our previous lesson of science. Can you tell me what was the name of the topic that we were reading in our last lesson of science? Very good. The name of the topic was the structure of the plant, and we were talking about the internal things that are present in a plant cell. We have studied that a plant cell is having a nucleus, cytoplasm, cell membrane, chloroplast, cytoplasm, last but not the least vacuole and cell wall. So we have also studied the classification of plant on the basis of the appearance and structure of the plant. Our today's science topic is very interesting. You will be able to learn about the structure of a seed. आप सबको पता है कि कोई भी प्लांट किसी भी सीड से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट है, यहाँ पे फ्रूट प्लांट है, यहाँ पे कोई फ्लावरिंग प्लांट है. किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए वी नीड अ स्पेसिफिक सीड फॉर दैट प्लांट. How does a seed look? What is the internal structure of the seed? This is what you are going to learn. I have drawn a diagram of seed on the board, and let's see like how many parts, what are the labeling of the seeds. So class 5, a seed has 4 major parts. Let's talk about each part separately and in detail. The outermost part of the seed, the outermost layering of the seed is what we call seed coat. Now what could be the function of the seed coat? Seed coat protect everything that is present inside the seed. जैसे हम किसी चीज़ को कवर कर देते हैं ताकि उसमें कोई चीज़ और जा ना सके, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम सीड कोट कहते हैं. और सीड कोट का बेसिक पर्पस ये होता है कि वो सीड को किसी भी आउटर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है. Some seeds are having the hard covering and some seeds are having the very soft delicate covering. जितने भी फ्रूट के प्लांट्स होते हैं ना, जैसे आप अभी एग्जांपल देख लो, जैसे समर्स में आप बहुत ज़्यादा वाटरमेलन और मेलन्स खाते हैं बिकॉज दे आर अवेलेबल इन द समर सीजन. तो अब जब कभी भी आप घर में मेलन या वाटरमेलन खाओ, आप उसके सीड्स देखो, यू विल सी कि जो उसका सीड है उसकी जो बाहर वाली कवरिंग है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है. मेलन का सीड भी बिल्कुल इसी तरह का होता है, सनफ्लावर का सीड भी बिल्कुल इसी तरह का होता है. बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं. हार्ड होने का पर्पज़ यही होता है कि वो सीड को अंदर से प्रोटेक्ट कर सके. ठीक है. सीड की सबसे जो आउटर कवरिंग है उसको हम सीड कोट भी कहते हैं एंड इट्स हैविंग एन अदर नेम. साइंटिफिक जो नेम है उसको हम टेस्टा कहते हैं. ठीक है. I have written it within the brackets that the outermost covering of the seed that is protecting the seed from all the outer thing is called seed coat. That is also called testa in scientific term. ठीक है. उसके बाद हम सीड के इंटरनल मटेरियल की बात करते हैं. जो सीड में इंटरनल मटेरियल होता है इसको एंडोस्पर्म कहते हैं. एंडोस्पर्म्स आर लाइक द टिश्यू that are surrounded the embryo and provide the nourishment to it. एंडोस्पर्म का काम होता है कि वो जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं. As I have used the word embryo, what is embryo now? Can you see like this line that I have drawn in the center of the seed? This is actually the embryo is. Embryo is actually the baby plant. जैसे ही सीड अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करता है, जो सबसे पहला उसका जो प्लांट लाइक ग्रोथ होती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं और उसको बेबी प्लांट भी कहते हैं. ठीक है. सो एम्ब्रियो इज फ्रॉम वेयर द प्लांट द सीड विल एक्चुअली स्टार्ट इट्स ग्रोथ. जब हम किसी सीड को देखते हैं उसकी एंड पर छोटी सी टेल बनी होती है
एक्चुअली वहाँ से सीड जो है वो प्लांट जब ग्रो करना स्टार्ट करता है, और जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी प्लांट का उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, बेबी प्लांट कहते हैं, जहाँ से उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है. Then we are having central elongated part is what we say cotyledon. It is a seed leaf that emerges from the seed when it germinates. जैसे ही एम्ब्रियो ने अपनी ग्रोथ स्टार्ट की उसके बाद जो आगे वाली चीज़ होगी उसको हम कॉटिलेडन कहते हैं. ठीक है. वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ सीड. अगर किसी सीड में सिंगल कॉटिलेडन है तो उसको हम मोनोकॉट कहते हैं, और अगर किसी में डबल है तो उसको हम डाइकॉट कहते हैं. ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोनोकोट्स एंड डाइकोट. बट उससे पहले हम इसको एक दफ़ा फिर सम अप करते हैं, रिवाइज करते हैं. व्हाट वी हैव लर्न in the structure of seed, it's having four major parts. The outer one that is protecting the seed is called seed coat. Then the internal part that is providing the food to the seed is called endosperm. The elongated part that comes after the embryo is called cotyledon, और embryo is the place from where the seed is actually starting its growth. जहाँ से अपनी growth को start करता है उसको हम embryo कहते हैं. So the four major parts of the seeds are seed coat, endosperm, cotyledon, embryo. ठीक है. अब हम देखते हैं कि cotyledon की बेस पर हम सीड्स को कितने पार्ट्स पर डिवाइड करते हैं. Remember, cotyledon is the फर्दर ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जब आगे ग्रो करते हैं तो उसका जो पार्ट है उसको हम कॉटिलेडन कहते हैं. ठीक है. ओके जी. हम कॉटिलेडन की बेस पे डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो सीड है वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है. I have explained to you that if a seed is having one cotyledon, that will be called as monocot. अब आप देखो मैंने टू डायग्राम ड्रॉ किए हैं बोर्ड पर. यहाँ देखो सिर्फ सिंगल सीड है, मतलब सिंगल कॉटिलेडन है, एक उसका पार्ट है. ठीक है. अगर किसी भी सीड में वन साइड है जो कि कॉटिलेडन है, सिंगल है, उसको हम मोनोकॉट कहते हैं. और अगर किसी सीड में टू कॉटिलेडन्स हैं, टू साइड्स हैं, इसको हम डाइकॉट कहते हैं. अब एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि बीन सीड जो होता है, जैसे कि पी सीड होता है मटर का, उसके भी टू पार्ट्स होते हैं. जैसे आलमंड सीड होता है, बादाम को भी जब आप सोक करो वाटर में, उसके बाद उसको पील ऑफ करो, उसको आप ब्रेक करो, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. तो उसके जो टू पार्ट्स हैं उसके टू कॉटिलेडन्स हैं. ठीक है. तो ऑल द सीड्स दैट आर हैविंग टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड dicot, and those that are having single cotyledon they are called monocot. monocot की एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे कि कॉर्न है जो मकई होती है, मेज़ है जो आप खाते हो, कॉर्न्स भी आप खाते हो, तो उसमें आप देखो एक सिंगल सीड होता है क्योंकि उसमें सिंगल कॉटिलेडन होता है. सो the example of monocot is maize seed, and the example of dicot could be almond seed, bean seed, pea seed. इन सब के टू कॉटिलेडन्स होते हैं और इनको हम डाइकॉट्स कहते हैं. So this was about the types of seeds that are present in our plant, monocot and dicot. Monocot are the one that are having single cotyledon, and dicot are the one that are having the double cotyledon. Then we have to see that how the process of germination continue, what happens in that. But before I tell you about the germination, I want you to think for a while. What do you think? What could be the process of germination? हम germination किसे कहते हैं? सी क्लास 5 हम लोगों ने अभी सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ा. सबसे पहले हमने प्लांट सी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा. आज आप साइंस के लेसन में स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में पढ़ रहे हो. वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड. सीड की क्या स्ट्रक्चर होती है, यू हैव गोन थ्रू इन डिटेल. अब हम देखते हैं कि और आपको ये भी पता है कि कोई भी प्लांट जो है वो सीड से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है. सीड का प्लांट में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है इसको हम जर्मिनेशन कहते हैं. व्हाट आई सेड, द प्रोसेस इन विच अ सीड इज चेंजिंग इनटू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. जर्मिनेशन ग्रोथ प्रोसेस होता है जिसमें एक सीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है और प्लांट में चेंज होता है. अब इस ग्रोथ प्रोसेस में I have written it on the board that the process which involves a seed becoming a plant is called germination. We will definitely talk about the process of germination in detail, but before that I want to share few things with you.
आपने देखा कभी कभी जब हम प्लांट्स ग्रो करते हैं तो सीड्स को लगाते हैं किसी भी गमले के अंदर या फिर ज़मीन के अंदर, बट उसमें से प्लांट्स ग्रो नहीं करते, वो सीड्स वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। जब सीड ग्रो नहीं कर रहा होता उसकी रीज़न होती है इट बिकम फॉलन इनटू द डॉर्मेंट कंडीशन। अब डॉर्मेंट कंडीशन क्या होती है? डॉर्मेंट कंडीशन ये होती है, जैसे आपने देखा होगा हमने जब एनिमल्स के बारे में स्टडी की थी, वी हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल्स हु हाइड देमसेल्फ इन विंटर सीजन। जैसे कि आप फ्रॉग की एग्जांपल लो, फ्रॉग्स जो हैं वो विंटर्स में अपने आप को हाइड कर लेते हैं और वो 3-4 मंथ्स तक अपने आप को ज़मीन के अंदर या किसी भी प्रोटेक्टेड प्लेस पे हाइड कर लेते हैं विंटर सर्दी से बचने के लिए, और स्लीपिंग मूड में चले जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को जिसमें कोई भी एनिमल अपने आप को हाइड कर लेता है, स्लीपिंग मूड में चला जाता है, इसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। जैसे एनिमल्स हाइबरनेटिंग कंडीशन में जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह सीड भी डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं। डॉर्मेंट कंडीशन में क्यों जाते हैं? जब हम उनको एक्सेसिव अमाउंट में वाटर प्रोवाइड कर देते हैं, ज़्यादा सनलाइट दे देते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स एक्सेस उसको प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो उसके साथ सर्वाइव ही नहीं कर पाता, ग्रो ही नहीं कर पाता, तो वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है। मतलब उसकी ग्रोथ वाली स्टेज है वो ख़त्म हो जाती है, वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए लाइक स्लीपिंग मूड में चला जाता है, आप कह सकते हो ईजी वर्ड में। अब जब दोबारा से वो ग्रोइंग कंडीशन में आएगा तो फिर प्लांट्स ग्रो करेंगे, और ऐसा हमारे साथ होता भी है। जब हम प्लांट्स को सीड्स को बो करते हैं सॉइल के अंदर, तो कुछ सीड्स तो वह ग्रो कर जाते हैं, कुछ 3-4 वीक्स के बाद ग्रो करते हैं। वाई इज़ दैट? दिस इज़ द रीज़न। वो सीड्स डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं, फिर जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल इन्वायरमेंट, उनकी पसंद के मुताबिक इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तब तक वो ग्रो नहीं करते। ठीक है, सो आई होप द dormant condition is clear to you. The situation in that is not suitable for seed, और वो अपने आप को हाइड करता है, ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, और जब उसको उसकी इन्वायरमेंट के जैसा उसको रिक्वायर्ड होता है, टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, सॉइल, हर चीज़ उसको उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिलती है, फिर वो ग्रो करना शुरू करता है। ठीक है, सो दिस वॉज द रीज़न कि हमारे प्लांट्स जो है वो जल्दी टाइम पे ग्रो नहीं कर रहे होते, कुछ और कुछ ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, there are few things that a plant need to continue the process of germination, that are water, oxygen, light and heat. What I said, these are the major things that a seed need to continue the process of germination: water, oxygen, heat and light. ठीक है, अब जब सब ये चीज़ें हम सीड को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करता है। क्या होता है? वी हैव टू पुट द सीड इनटू द सॉइल। जैसे हम उसको सॉइल में डालते हैं, उसका एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है, और एम्ब्रियो मैंने आपको बताया था कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, जिसको हम बेबी प्लांट्स कहते हैं। फिर उसकी रूट्स बनती हैं, शूट्स बनती हैं, लीव्स बनते हैं, देन इट विल मेक फ्लावर्स, और उसके बाद फिर फ्लावर्स में से हम फिर से सीड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन। सबसे पहले हम सॉइल में कोई भी सीड डालते हैं, और जब उसको फेवरेबल सिचुएशन उसकी होती है, फेवरेबल सिचुएशन क्या कहते हैं? जिसमें उसको उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, फिर वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है। और जैसे उसने ग्रोथ स्टार्ट की, सबसे पहले एम्ब्रियो होगा, बेबी प्लांट। बेबी प्लांट अगर होगा, उसके बाद उसकी रूट्स बनेंगी जो ज़मीन के अंदर जाएंगी, और रूट्स अपने आप को ज़मीन के अंदर बड़ा स्ट्रांगली ग्रिप कर लेती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? उसका स्टेम बनेगा, लीव्स बनेंगे और फ्लावर्स होंगे, और फिर फ्लावर्स में से फिर से सीड्स को हम ले लेंगे, और उसके बाद दोबारा से ये वाला प्रोसेस जर्मिनेशन का स्टार्ट हो जाएगा इफ़ वी वांट टू ग्रो अ न्यू प्लांट। ठीक है, दीज ऑल थिंग्स हैपन व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द जर्मिनेशन. They have given you these all process in detail on page number 41. The diagram I have drawn it on the board. They have also made it on page number 41 of your science book. ठीक है, then we are having some multiple choice question. They have given it on page number 42. You have to open your science book, page number 42. This is the page number I was talking, and here we are having some multiple choice question. Let's read it together. When the food inside a seed breaks down, what is released? जब कोई seed food में से
जब कोई भी सीड ब्रेक डाउन करता है उसमें से क्या चीज़ रिलीज होती है, तो दैट विल बी एनर्जी. सो यू हैव टू सर्कल द वर्ड एनर्जी. अ डाइकॉट प्लांट हैज़ 2 cotyledon, आपने अभी पढ़ा. रूट्स ग्रो इन विच डायरेक्शन, जो रूट्स होती हैं वो किस डायरेक्शन में ग्रो करती हैं? क्या आपने कभी रूट्स देखी हैं प्लांट की? येस, यू ऑल हैव सीन. हैव यू बॉदर लाइक फ्रॉम विच साइड दे आर ग्रोइंग? दे आर ग्रोइंग डाउनवर्ड, ज़मीन की तरफ ग्रो कर रही होती हैं. ठीक है, सो यू हैव टू सर्कल दिस. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ सीड, and this is the whole process. You have to go through the reading of this page 41. Let's see if they have given any question related to our topic. Yes, I find out. We are done with this question. Draw a plant cell and explain the function of each. ये question आप already कर चुके हैं अपनी previous science lesson में. This is about this one. ये plant cell की diagram है और आपने इस सब के बारे में explain किया हुआ है. Second question is, what is the difference between dicot and monocot? Can you tell me the difference between a dicot and monocot? You have learned it today. Well done, Khansa. Dicots are the plants that are having 2 seeds. Sorry, dicots are the seeds that are having 2 cotyledon, and monocots are the seeds that are having single cotyledon. ठीक है, अब आप इसको कैसे explain करोगे? दिस इज द डायग्राम दैट यू आर सपोज टू डू. आप ये भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और ये भी करेंगे, बिकॉज मोनोकोट और डाइकोट दोनों के बारे में बताना है. देन हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर? यू विल बी राइटिंग दिस होल पैराग्राफ विल बी द आंसर. द सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंटेन ईदर 1 or 2 cotyledons. Those with 1 cotyledon are called monocot, जैसे कि ये, and those with 2 cotyledons are called dicot, जैसे कि ये. आपने इसकी डायग्राम को ड्रॉ करना है और इसको प्रॉपरली लेबल करना है. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन डाइकॉट एंड मोनोकॉट. ठीक है, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. डायग्राम भी आपने ड्रॉ कर ली. ये हमने ये सीड के बारे में पढ़ा है, ये आपने बुक पर ही करनी है. देयर इज़ नो नीड टू डू इट ऑन द नोटबुक. लेट मी चेक इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट. ओके, आई गॉट वन मोर. ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक. व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड्स टू जर्मिनेट? जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में उसको सनलाइट या वाटर प्रोवाइड करते हैं तो सीड डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है. तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो सीड है वो डॉर्मेंट कंडीशन में ना जाए और प्रॉपरली ग्रो करे. सो यू हैव टू राइट द आंसर. This will be the answer. A seed requires water, oxygen, light and heat. And if we are not providing these things, the seed will not be able to grow. ठीक है? I am writing it here. Answer of question number 2. ठीक है? ये आपको इसकी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. उसके बाद you have to draw the diagram of dicot and monocot. Also you have to draw this one. ये भी आपने अपनी साइंस की नोटबुक पर ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करना है टू एक्सप्लेन द जर्मिनेशन ऑफ सीड. ठीक है, ऑल्सो देयर इज वन क्वेश्चन लाइक व्हाट इज जर्मिनेशन. ठीक है, you have to write this question on the notebook and the answer will be the process which involves a seed becoming a plant is known as germination. वो प्रोसेस जिसमें सीड जो है वो प्लांट में चेंज हो रहा होता है, इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे. Let's give a quick wrap up to our science lesson. We have studied the structure of seed. A seed is having outer structure called seed coat, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में टेस्टा भी कहते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर को एंडोस्पर्म कहते हैं. एम्ब्रियो जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है, और एम्ब्रियो अगर थोड़ा सा प्रोसीड करता है उसको कॉटिलिडन कहते हैं. इफ़ अ सीड इज हैविंग 1 कॉटिलिडन इट विल बी कॉल्ड एज मोनोकॉट, और अगर 2 कॉटिलिडन है तो उसको हम डाइकॉट कहते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखा कि सीड की जर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले सीड को हम बो करते हैं सॉइल में. ठीक है, ज़मीन के अंदर डालते हैं, उसको पानी देते हैं, सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, वो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करता है. ठीक है,
और ये हमने देखा कि सीड की जर्मिनेशन के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, दैट आर वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन एंड लाइट, ठीक है। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग ऑल दिस थिंग इन पर्टिकुलर अमाउंट, द सीड विल नॉट बी एबल टू ग्रो. What you are supposed to do, आपने क्वेश्चन आंसर मोनोकोड एंड डायकोड विद डायग्राम अपनी नोटबुक पर राइट करना है. ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन द नोटबुक with the heading germination. This is all about today. See you in the next class with a new video and new topic. Allah Hafiz.